Hello students, today we will continue our chapter number 4 named fractions. In today's video we will study about the operations on fraction. आज हम देखेंगे कि कैसे हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं गिवन फ्रैक्शंस को. बच्चे ये हम वन बाय वन करेंगे. पहले हम लाइक फ्रैक्शन के लिए करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू फॉर अनलाइक फ्रैक्शन. बच्चे इफ़ यू हैव टू ऐड 3/7, 4/7, 5/7, add this and 3/7 again. बच्चे इफ़ इट इज़ गिवन देन व्हाट विल यू डू. तो आप बेटा देख रहे हो कि जो ये आपके चारों के चारों फ्रैक्शन हैं ये किस फॉर्म में है, आपके लाइक फ्रैक्शन है. ये क्या है बेटा, सभी के डिनोमिनेटर सेम है. इट मीन्स डेट ऑल दीज 4 फ्रैक्शंस आर योर लाइक फ्रैक्शन. अगर आपको इस तरीके के लाइक फ्रैक्शन आपको गिवन है तो आप उसको कैसे ऐड करोगे. सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द क्वेश्चन. सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे बेटा, इसको लिखिए. पहले क्या कीजिए, एडिशन का जो सिंबल है दैट इज प्लस का सिंबल वो आपको यहाँ पे पुट करना है. यू हैव टू राइट लाइक दिस. आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू सी दैट डिनोमिनेटर इज सेम. जो कॉमन डिनोमिनेटर है बच्चे वो आप यहाँ लिख लीजिए एज ए डिनोमिनेटर. कॉमन डिनोमिनेटर आपने लिख लिया. आफ्टर दिस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर की जो भी वैल्यू गिवन है उन सबको ऐड कर दो. अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है दैट इज़ अगर आपको लाइक फ्रैक्शन गिवन है तो एडिशन बड़ी ही सिंपल हो जाती है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना होता है. आपको एज इट इज़ न्यूमरेटर की वैल्यू लिखनी होती है. जैसे आपने 3 लिखा, आफ्टर दिस प्लस एंड देन 4 प्लस 5 देन प्लस 3 एंड योर आंसर विल बी 3 plus 4 7, 7 plus 5 is 12, 12 plus 3 is 15, 15/7 is your answer. बच्चे you can see here your denominator is smaller than your numerator. Numerator is greater than your denominator. It means that it is improper fraction. ये क्या है बेटा, आपका improper fraction. And you can convert this improper fraction into mixed fraction. What you have to do for this? For this you will divide your numerator with this denominator. See बच्चे, it will become 7 2s are 14 and 1 is left. You have to put it here and this. It means that 2 whole 1/7 is the answer. बच्चे like this you can add. Okay, if same question I will give you one more question. You have to solve it yourself. बच्चे you have to add 3/7, 4/7, 5/7. This question is for practice. You will solve it by yourself. Okay beta. Now we will do subtraction. Subtract 3/7 from 9/7. बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि जो आपका फ्रैक्शन है वो कैसा गिवन है. आपने देखा कि आपको 2 फ्रैक्शन जो गिवन है वो क्या है, आपके लाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज योर डिनोमिनेटर इज सेम. तो आपको क्या करना है, इसको पहले तो सिंपल फॉर्म में लिखना है. जैसे 9/7 माइनस 3/7. सी बच्चे सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. इसमें से इसको माइनस करना. फ्रॉम मीन्स से, इसमें से इसको माइनस करना है. दैट इज 9/7 माइनस 3/7 you have to do. And you can see denominator is same, so you have to write 7 here. Common denominator you have to write. And what you have to do with this numerator you have to write as it is, but you have to put the symbol which is given. Here what is given, it is minus, so you have to put here minus. If here plus is given then you have to put plus sign. It means that there is no change with the denominator in your like fraction, only the value of numerator will change. If plus sign is given then you have to put the sign of plus between the given numerators, and if minus is given then you have to put the sign of minus. You can see 9 minus 3 gives you 6. It becomes 6/7. और अगर आपको सेम क्वेश्चन अगर इस तरीके से गिवन हो 3/7 plus 9/7, what will you do? Simply you have to write common denominator here, and after this what you have to do, you have to write numerators and the symbol of plus, so put the sign of plus between these two numerator and you will get the answer 12/7. 12/7. Okay beta. So operation of addition and subtraction is very easy for like fraction, but if the given fractions are not like fraction, if these are your unlike fraction in which your denominator is not same, then what you have to do for this, first of all you have to find out the LCM of the given denominator, and after that you have to solve the question if the given fraction are unlike fraction. अगर आपके पास क्या है, unlike fractions given है
तो आप बेटा कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे? सी बच्चे हेयर 3/7, 4/21 is given, like this is given to you, this and this is given. तो बच्चे you can see here denominator is different. तो these two are the example of your unlike fraction. ये किसके example हो गए बेटा? unlike fraction के. अगर आपको बोल दे add this and 7/7, अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए बच्चे कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर आपका क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इट मीन्स डैट कि आपका क्या बन गया, अनलाइक फ्रैक्शंस. तो बच्चे अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है. आप क्या लिखोगे? एलसीएम ऑफ 7, 21 एंड 7 इज 21. तो आपने बच्चे जब आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे यू विल फाइंड दैट द एलसीएम ऑफ 7, 21 एंड 7 इज 21 एंड आफ्टर दिस यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन. बच्चे सी from here I will do solution, you have to write, and what will you have to do? 3/7 plus 4/21 plus 7/7. This is the question. Then you have to convert it like this, then find the LCM of the given denominators, and after doing this what you have to do, write the LCM of the given denominator, that is your 21. तो as a denominator you will write your LCM. बच्चे after writing the LCM you have to divide this LCM with this denominator. 7 3s are 21. With this denominator you will divide the LCM, and whatever you get you have to multiply that number with this numerator. See बच्चे 7 3s are 21. 3 you get. After getting 3 you have to multiply it with your numerator. Numerator is also 3. So 3 into 3 gives you 9. Then symbol is of plus. बच्चे write symbol of plus, and after this 21 divide 21. So what will you get? 21 divided by 21 you get 1. 1 into 4 you will get again 4, because 4 into 1 is 4. Plus 7 3s are 21. 3 into 7 21, and your answer will become how much? 21 plus 4 25. 25 plus 9 gives you 34. 34/21 is your answer, and you can see this is the आंसर इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आंसर आपको किस में है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इज़ अप टू यू. अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आप नहीं चाहते कन्वर्ट करना तो यू कैन लीव इट एज इट इज़. सी बच्चे अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हो? हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो नंबर यहाँ आ जाता है, प्लस जो रिमाइंडर रहता है यहाँ. सी 21 को जब आप 34 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 1 जो 21, जब आपने 21 को 34 में से माइनस किया तो आपके पास कितना बचा? 13 रिमाइंडर बचा. तो आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है और बाय में 21. इट मीन्स डैट दिस 34/21 इज इक्वल्स टू 1 होल 13/21. तो बेटा जो ये आपका 34/31 डेट इज 34/21 है, ये किसके इक्वल है? 1 होल 13/21. ओके बेटा, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं. बच्चे सी इन दिस सेम क्वेश्चन I will do some changes, like just think कि if question is given like this. अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, सेम क्वेश्चन में क्या करूँ? सिर्फ सिंबल चेंज करी बेटा. आपको क्या गिवन है? 3/7 प्लस 4/21 माइनस 7/7. तो बच्चे आपको इसको सोल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे? सिंपल. इसके लिए भी बच्चे आपको क्या करना है? पहले आपके पास आपको चेक करना है कि गिवन जो फ्रैक्शन है वो कैसे हैं, लाइक है या अनलाइक है. आपने चेक किया कि देखो यहाँ पे ना आपका ये दो डिनोमिनेटर ये क्या डिफरेंट है. तीनों के तीनों जो गिवन डिनोमिनेटर है दे आर नॉट सेम. इट मीन्स दैट दे आर अनलाइक फ्रैक्शन. अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उस केस में आप क्या करते हो? एलसीएम निकालते हो. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर आपने कैलकुलेट किया हो, कितना है बच्चे? 21. तो सेम बच्चे आपको जो एलसीएम आया वो आपने क्या करना है? एज ए डिनोमिनेटर लिख देना है. कॉमन डिनोमिनेटर बना के आपने यहाँ पे लिख देना है. उसके बाद आपको क्या करना था? इसको 7 से इस एलसीएम को डिवाइड करना था. तो 7 3s are 21, 3 you get, 3 3s are 9 you have done. एंड बच्चे आफ्टर दिस यू हैव सीन दैट द सिंबल ऑफ प्लस इज गिवन. तो आपने यहाँ पे बेटा प्लस लिखा, लेकिन यहाँ पे बच्चे अगर आपका माइनस गिवन है तो ये भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन आपका माइनस में. ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका माइनस में. तो बेटा देखिए बिल्कुल ईजी है. सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपको सिर्फ रूल याद रखना है कि अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, अगर आपके पास लाइक
फ्रैक्शन है, उस केस में आपका जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो एज ए डिनोमिनेटर लिखा जाएगा और उसके बाद जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपको लिख के सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। बट इन अनलाइक फ्रैक्शन, अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन में जब आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, वहाँ आप क्या करते हो, जो आपका कॉमन डिनोमिनेटर है वो कौन बनता है, एलसीएम बनता है बच्चे। जो सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होता है वो एज ए कॉमन डिनोमिनेटर लिखा जाता है। तो बेटा आपने वही किया, ये एलसीएम है, एलसीएम ही तो है जिसको आपने कॉमन डिनोमिनेटर बनाया है। आफ्टर दिस यू हैव टू सोल्व सिंपली एंड यू हैव टू पुट द साइन वट एवर इज गिवन हेयर, लाइक हेयर प्लस इज गिवन तो यू हैव टू राइट प्लस, इफ हेयर माइनस इज गिवन देन यू हैव टू राइट माइनस। नाउ सोल्व इट बच्चे। सी हेयर 21 माइनस का दिस एंड दिस ऑफ प्लस साइन, इट मीन्स दैट 9 + 4 gives you 13. तो what will you get? 13 minus 21/21 एंड यू कैन सी बच्चे जब आपके पास डिफरेंट साइन गिवन है, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, तो बेटा जब आपके पास डिफरेंट साइन गिवन होते हैं तो आप हमेशा क्या करते हो, माइनस करते हो। क्या करते हो, माइनस। एंड हमेशा बच्चे बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो जब आपने 21 में से 13 को माइनस किया तो आपको कितना मिला बेटा, 8। कितना मिला आपको, 8। आफ्टर गेटिंग 8 बच्चे यू हैव टू सी कि जो बड़ा था वो किसका था, प्लस का था या माइनस का। आपने चेक किया कि जो माइनस साइन वाली वैल्यू थी वो बड़ी थी, तो आपको क्या करना है, बड़े वाली वैल्यू का साइन भी पुट करना है। यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा, -8/21। क्या बन जाएगा आपका आंसर, -8/21। सी बच्चे इन सेम क्वेश्चन वी विल चेंज। आफ्टर डूइंग दिस आई विल चेंज द क्वेश्चन। आई विल राइट 3/7 -4/21 -7/7। अगर इस तरीके से ये क्वेश्चन है तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। आपने चेक किया कि जो आपको गिवन फ्रैक्शंस है दे आर अनलाइक फ्रैक्शन, तो you have to calculate LCM for this. You have calculated your LCM and after this you have to write this LCM as your common denominator, and after this you have to divide this common denominator with the given denominator. See which is 7 3s are 21, 3 you get, and whatever you get you have to multiply with the numerator. So 3 into 3 gives you 9. Now see बच्चे 3 into 3 gives you 9 ना. After this sign of minus is given, so बच्चे minus sign you have to put. After this 21 1 are 21, so 1 you get, 1 into 4 is 4, minus 7 3s are 21, 3 you get, 7 3s are 21, 3 you get, 3 with 7 you multiply तो you get 21. तो बेटा आंसर will become what? सी बच्चे सेम साइन का होता है, ऐड होता है। सी 9 माइनस का 21 माइनस का 4 gives you माइनस का 25, and this is your required answer. You can see 25 minus 9 you got बेटा 16, you got 16/21. बट सिंबल किसका आएगा बेटा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 25 का सिंबल क्या है, नेगेटिव। बच्चे इट इज़ द आंसर -16/21. लाइक दिस यू हैव टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज. यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट. इन लाइक फ्रैक्शन just write the denominator and subtract and add your numerators. If the fractions are unlike, then what you have to do, you have to convert the denominator into common denominator, and that is nothing, that is the LCM of the all the given denominators. Okay beta. if you have to given mixed fraction, अगर आपको mixed fraction given है और आपको add और subtract करना है तो आपको क्या करना है, देखिए बेटा, जैसे अगर मैं कह देती हूँ आपको add 3 7/9 प्लस 4 3/9. अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, सी बच्चे यू कैन सी ऐड दिस एंड दिस इज गिवन टू यू, you have to add this. What you have to do, first of all you have to convert the mixed fraction into improper fraction. improper fraction में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है वो होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो भी मल्टीप्लाई करके आता है उसको क्या करते हो आप न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देते हो. तो बेटा सी 9 3s are 27, 9 3s are 27, 27 plus this 7 gives you how much, 33. See बच्चे 27 plus this 7 gives you 34. How much you got, 34, 34/9. Now बच्चे see 9 4s are 36, 9 4s are 36, 36 plus 3 gives you 39.
39/9. Now you can see बच्चे these are your improper fraction, but one more thing is there. See the denominator, both the denominators are same. It means that these improper fractions are in the form of your like fraction. तो like fraction में क्या करते हो आप, कॉमन डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज़ उतार के जो भी आपके पास सिंबल है वो सिंबल पुट करते हो और आप सोल्व कर देते हो. सी बच्चे, you have done this much and this add this 9 plus 4 gives you 13 right here, and 1 carry here, 3 plus 1 4 plus 3 plus 1 4, 4 plus 3 7, 7/9. Now बच्चे this is in the form of your improper fraction. You can convert it into mixed fraction also. See, 9 8s are 72, 9 8s are 72, 1 as a remainder left, you have to write it as numerator and here it is your denominator. So you can say 8 whole 1/9 is the answer of this question. 8 whole 1/9 is the answer of this question. But see how, what I have done. First of all, I have to convert this mixed fraction into improper fraction. See, 9 3s are 27. 27 plus 7 gives you 34. 27 plus 7 gives you 34. Then put the 34/9. You got symbol is of plus. So write here plus. And now 9 4s are 36. 36 plus 3 you get 39. 39/9. And when you will you have, now you can check these two improper fractions. These two improper fractions are in the form of like fraction. In like fraction what you have, denominator same. Like fractions are those which have same denominator. We can see these two improper fractions have same denominator, and in case of same denominator you can say these are your like fraction. बच्चे like fraction में क्या करते हो, जो डिनोमिनेटर होता है उसको लिख लेते हैं, प्लस क्या करते हैं न्यूमरेटर और जो आपके न्यूमरेटर गिवन है उनकी वैल्यूज एज इट इज़ आप कॉपी पेस्ट करते हैं आप इधर. ठीक है बेटा, यहाँ से कॉपी किया इधर पेस्ट किया और जो सिंबल है वो भी एज इट इज़ पेस्ट कर देते हो और फिर इसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे करते हैं. सी बच्चे, सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आपको चेंज कर दूँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करती हूँ मैं, प्लस साइन की जगह अगर आपको माइनस दे दूँ तो आपको क्या पता है कि सबसे पहले क्या करना है, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. आप कर चुके, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में होते बच्चे माइनस का साइन, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस का साइन. और हमें पता है जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो आप क्या करते हो, न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते हो. सिर्फ ध्यान रखते हो कि बीच में सिंबल क्या गिवन है, अगर माइनस गिवन है तो माइनस और अगर प्लस गिवन है तो प्लस. नाउ यू कैन सी हेयर 34 माइनस 39. हमें पता है जब डिफरेंट सिंबल होते हैं तो हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं. एंड सिंबल किसका आता है, जो बड़ा होता है. बड़ा कौन है इनमें, 39. तो सिंबल किसका आएगा, बड़े का. डेट इज 39 का नेगेटिव. बेटा नेगेटिव आपने यहाँ लिखा, 39 में से 34 गया, यू विल गेट 5/9. दिस इज द आंसर ऑफ योर गिवन एग्जाम्पल. तो बच्चे जो एग्जाम्पल है आप इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है बेटा. नाउ सी, अगर आपको इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी, कोई नहीं हम नया क्वेश्चन लेते हैं. अगर आपको हो क्वेश्चन गिवन ऐड 3 होल 1/2, 4 होल 1/3, 2 होल 1/4, ऐड दिस एंड दिस. अगर बेटा आपको ये तीन मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है और आपको इनको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जो गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको आप किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर में. तो सॉल्यूशन में बेटा क्या करना है, पहले लिखिए 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 1/3 प्लस 2 होल 1/4. बेटा आपने लिखा, सबसे पहले क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट कीजिए, 3 2 6, 6 + 1 7/2 प्लस 3 4 12, 12 + 1 13/3 प्लस 2 4 8, 4 2 8 + 1 9/4, 4 2 8 + 1 9/4. बच्चे नाउ यू कैन सी दीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. These improper fractions are unlike fraction. So LCM of denominator you have to calculate LCM of denominator. Denominators, that is LCM of 2, 3 and 4 is equals to 12. बेटा आपको क्या मिला, LCM 2 3 4 का 12. तो बेटा यहाँ आफ्टर कैलकुलेटिंग द LCM यू हैव टू टेक कॉमन डिनोमिनेटर एज योर LCM. सी बच्चे जो LCM है वो क्या लेना आपको, एज योर कॉमन डिनोमिनेटर. जो LCM है वो आपका क्या बन जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर. बच्चे ये क्या है 12. अब आफ्टर टेकिंग दिस 12 व्हाट यू हैव टू डू, इस 2 से इस 12 को डिवाइड करना है. 2 6 12, 6 यू गॉट 6 × 7
42, 6 into 7 is 42, सिंबल किसके है प्लस का. नाउ 3 4s are 12. Now 4 you got 4 into 13, it is a 52. 4 into 13 is 52 plus 4 3s are 12. 4 3s are 12. 3 into 9 is 27. 3 into 9 is 27. Add these. See which is 7 plus 2 9. 9 plus 2 11. 1 carry plus 2 3. 3 plus 5 8. 9 10 11 12. And this is the answer बच्चे. This is the answer. This is the answer in improper fraction. If you want to convert it into proper fraction, what will you get? You get 12 1 12. Here बच्चे see 12 1 12, and this is not going, so here 0 and 1 is left 12. So 10 whole 1 by 12 is the answer of this question. बच्चे if minus is given here, if here the question is, if the question is this plus and this is given in minus, अगर बच्चे ऐसे आपको क्वेश्चन गिवन है तो सेम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट चेंज द सिंबल. बच्चे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ सिंबल चेंज कर दोगे, बाकी का जो आपका तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का वो एज इट इज़ रहेगा. तो बच्चे आपको क्या मिलेगा वो आप देखिए. अगर आपके पास क्वेश्चन है दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो इन दोनों को आप ऐड करना है और इसको ऐड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो आपने देखा कि आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके आपने देखा कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. तो बच्चे अनलाइक है तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का, और जब आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालोगे इसके बाद आपको सोल्व करना है. सी बच्चे -27 एज इट इज़ यू हैव टू राइट, एंड 12 भी आपको एज इट इज़ लिखना है. नाउ सी 42 plus 52, what will you get? 2 plus 2 4, 5 plus 4 is 9. It means that 94 minus 27 you have to do. बच्चे this 4 can't subtract the 7, so this 4 will take 1 borrow from this 9. तो यहाँ पे बच्चे आपका क्या बन जाएगा 14. 14 minus 7 gives you 7, and 9. Now 9 will become 8 as it is 9, and when it gives 1 borrow to this 4, then it will convert it into 8. So 8 minus 2 gives you 6, and this is 12. And now you can see 12 5s are 67. By on the basis of these concepts you can solve all your exercise question. Hope everything is clear to you. If you have any doubt you can ask me on WhatsApp group. Okay.